candid conversation with a very old student of mine, somebody very brilliant, somebody I'm very proud to have introduced to you. Meet Yogi or Yoginder. Now, Yogi has a very interesting profile, and the reason that he's here today is because of a lot of success he's had in competitive examinations and also because of other reasons. So, I'll just give you a brief introduction about who he is, what he's done, and what we can expect from this conversation. सबसे पहले तो he has a long list of examinations, competitive examinations, जो योगी ने clear किए हैं. He has cleared the IIT JEE, so he's from IIT Delhi. He's from IIT BHU. He has cleared the CAPF exam. He has cleared the Rajasthan Administrative Service exam. He has cleared UPSC CSE prelims thrice. He has cleared Ministry of Social Justice and Empowerment Ministries exam. He has also cleared the Indian Forest Service exam and secured rank 136 just very recently. Now he has a history of these successes in the exam. Competitive exams, government exams in particular, makes for a very interesting case study, मुझे लगता है. तो ये अपने आप में एक specimen है योगी. और the interesting thing about him is that I have known him for a very long time. In fact, जब हम start करा था योगी started with my book, essay writing की book, और उसके बाद mentorship program में, और उसके बाद main super group में, और उसके बाद you also became a faculty in one of the programs. And there you taught CSAT. And here we are today. So that's a very interesting journey. So Yogi, I want to get straight to the point. How are you able to crack all these exams? क्या है secret? Sir, I think the approach, क्योंकि sir हर exam in the end it's a relative competition and it's a race. You have to get ahead of others, and whole preparation about every exam in India is content centric. But I focused on my skills. मेरे को लगता है sir skills अगर अच्छी हैं तो you are ahead in a relative competition. Sir, second thing will be guidance. कि who is guiding you? कि if there is someone जिसको पता है कि एग्जाम कैसे क्रैक होगा या फिर इस एग्जाम की डिमांड क्या है. देयर इज अ स्पेसिफिक डिमांड फॉर एवरी एग्जाम ना, हर टाइप का क्वेश्चन कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उनको सॉल्व कैसे करना है. इफ समवन कैन डायरेक्टली टीच इट टू यू, so sir that worked for me. Like since my JEE days I have got very good mentors, so sir therefore I am saying ki I am a lucky aspirant. I have been a lucky aspirant because of my mentors. So that is a kind of luck that you can have कि अगर आपके mentors अच्छे हैं, so there is a high probability कि you will clear that exam. They will help you to build your skills that are required for that exam. So last will be the mindset. Sir, it is something कि this exam or any exam is a year long process and हम लोग decide नहीं कर सकते कि हम वहाँ पे जाके उन 2 घंटे में क्या करने वाले हैं. तो इट इज समथिंग कि वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट. तो कितना आपने पढ़ा है, कितनी मेहनत करी है, इट्स ऑल वेस्ट इफ यू आर ब्लैंक इन दोस 2 hours or 3 hours. करेक्ट. सो इट्स द माइंडसेट दैट you carry to that. So sir आपने meditation वगैरह, focus and all those things that I've learned. So now I can proudly say that I can concentrate. Sir, जैसे this year's prelims it was way too dicey. And sir, so I cleared it. And it's not because of my knowledge. I didn't prepare it for that well because I was teaching. I was confused कि देना ही नहीं देना. I was preparing for my forest services interview. All those things. But sir, one thing that worked in my favor. So for those 2 hours, I was calm. I was composed. I was focused. I know कि इसमें से कुछ तो easy होगा. And ये अगर tough है तो सबके लिए tough है. All these things are like combinedly helped a lot. Temperament का एक बहुत बड़ा factor है. Yes sir. In the exam situation itself. पर यही temperament काम आता है ना when we are going through the motions, क्योंकि एग्जाम में बेशक एंजाइटी हो, बिफोर द एग्जाम जितने भी मंथ होते हैं उसमें अनसर्टेनिटी होती है, स्ट्रेस होता है, पीयर प्रेशर, प्रेशर फ्रॉम अदर्स हु आर क्लियरिंग इट, प्रेशर फ्रॉम योर फोक्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रेशर ऑफ द कंटेंट इटसेल्फ. स्टेबल टेम्परामेंट कितना इंपॉर्टेंट है. आई नो पर्सनली, आई नो यू एंड आई अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी. तो मुझे पता है कि यू हैव अ स्टेबल टेम्परामेंट. जिनका नहीं है, व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर देम? सर, जिनका एग्जाम टेम्परामेंट स्टेबल नहीं है या फिर मतलब एंजाइटी लेवल है एग्जाम को लेके, सर दे आर प्रोन टू एग्जाम ट्रैप्स. मैं एग्जाम ट्रैप्स की बात कर रहा हूँ जो कि पूरा एक मार्केट इंडस्ट्री पूरी जो इसके अराउंड बनी हुई है. सो लाइक हर किसी को सर अपना मटेरियल बेचना है, हर किसी को अपनी क्लासेस चलानी है. एंड अगर आप स्टेबल नहीं हो ना, अगर आप चूज नहीं कर सकते सर, मतलब ये दिस हैज बीन अ चेंज इन रिसेंट ईयर्स कि आज की डेट में कंटेंट इनफाइनाइट हो चुका है मार्केट में. लाइक इट्स हार्ड फॉर अ ह्यूमन टू ग्रैब इट, और उसको फिर लर्न करके रेप्लिकेट करना, तो दैट इज एन इम्पॉसिबल टास्क. सो बीइंग सेलेक्टिव इज समथिंग दैट आई बिलीव कि इस पूरे ट्रैप से बचना, अपने आप को कंपोज रखना, किसी ट्रैप में फॉल ना होना. यू शुड नॉट बी जस्ट दैट किड की जो ये क्रिटिकल थिंकिंग का जो एलिमेंट है, तो इन ऑर्डर टू डिस्क्रिमिनेट
Yes, sir. between what is valuable, what is not valuable, और मुझे क्या चाहिए. तो this is what something I tell about people who say, do I even need coaching or not? तो मेरा आंसर उसका ये है, you may or may not need coaching. Yes, sir. आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए. Figure out that first and then approach any institute or coaching or service to get only that. Yes, sir. Don't expect कि आप वहां पर जाओगे और वहां पर जाकर आपको सब चीजें वो आपको दे देंगे as Yes, if a sir. magic wand has been pulled. So how long did it take for you to get that? और ये जैसे एग्जाम्स एक के बाद एक क्लियर होने लगे, क्या कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट था जो आपको समझ में आया और इसके बाद कुछ समथिंग गॉट अनलॉक्ड, या ये ऐसे ही ग्रेजुअल प्रोसेस है? Sir, one thing that I figured out very like early in my journey was the relevance, and at that was because of JEE experience. You can say कि पहले भी preparation की आदत थी कि क्या relevant है इस एग्जाम के लिए, वो बहुत कम लोग बताते हैं सर. कि मतलब what people do, तो they try to cover each and everything under the sun कि हम फिर so that they can claim कि हमारे आसपास कुछ तो भी आया था. and they यहाँ पे मतलब सर कोचिंग बच्चों को काम आसान करने की जगह बढ़ा रही है कि दे आर नॉट एक्टिंग एज अ फिल्टर, दे आर एक्टिंग एज अ कलेक्टर कि सब कुछ इकट्ठा करके पूरी दुनिया का तुमको दे देंगे. सर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई जस्ट थिंक कि एक ही चीज आपकी हेल्प कर सकती है, वो होगा कोई एक्सपीरियंस लोग. सो आई हैव बीन मेंटर्ड बाय यू, सो यू हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ एग्जाम एंड यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दैट एग्जाम सिंस अ डिकेड. सो सर वो डिकेड लॉन्ग एक्सपीरियंस जो है ना किसी का, आई डोंट थिंक उसको कोई रिप्लेस कर सकता है. देयर इज नो अदर थिंग. एंड सर आपने जो एक चीज सिखाई थी वो बेस्ट ये थी कि पर्पस पता होना चाहिए, जो अभी आपने बोला. तो सर वो हर चीज में रिलेवेंट है कि कोचिंग किसी चीज की करनी है. तो सपोज कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, देन यू कैन गो एंड बाय अ करंट अफेयर्स कोर्स. इट्स नॉट अ कंपल्शन, इट्स नॉट नेसेसरी एंड इट्स नॉट सफिशिएंट ऑल्सो. बट अगर आपको न्यूज़पेपर खत्म नहीं कर पा रहे हो आप, तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट. सेम अप्लाई फॉर एनी आंसर राइटिंग कोर्स. लाइक इफ सो आई वाज नॉट फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, सो मेरे को आंसर राइटिंग में इतनी, आपको सर शुरू का पता ही है, मेन सुपर ग्रुप का शुरू में इतनी अच्छी नहीं थी आंसर राइटिंग. नहीं, मैं जब पढ़ता था आपके आंसर्स एसेस ज्यादा मुझे Yes, याद sir, है. essays. एसेस तो अच्छे ही लिखे होते थे एंड यू आल्सो कंसिस्टेंटली गॉट गुड मार्क्स इन एसे. तो एक इनहेरेंट राइटिंग स्किल तो था, बट हाँ आंसर राइटिंग में कुछ Structuring, yes, कमी थी. यू हैड अ टेक्निकल बैकग्राउंड, यू डिड नॉट हैव अ सोशल साइंस बैकग्राउंड. यस सर. जो वोकैबुलरी वगैरह चाहिए, यस सर. तो दैट यू हैव बीन एबल टू अक्यूमुलेट. यस सर. तो वो कैसे करी? सर वही मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को अपने वीक पॉइंट्स पता थे. सो आई न्यू कि मेरे को पढ़ने में कुछ इशू नहीं है, बट मेरे को लिखने में तो है. क्योंकि आई वाज बीइंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, 10th क्लास के बाद से कभी कुछ लिखा नहीं. सो आई वाज लैकिंग दैट वोकैबुलरी एज यू सेड, एंड आई वाज आल्सो लैकिंग दैट स्पीड, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्योंकि वी नेवर डिड ब्रेनस्टॉर्मिंग. हम लोग को तो सर क्वेश्चन मिलता था, सॉल्व करना होता था. एंड आई वाज फ्रॉम मैथ्स ऑप्शनल 2, तो ऑप्शनल में भी सर वही चल रहा था कि क्वेश्चन मिलेगा, सॉल्व करना है. बट हियर यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म, यू हैव टू गैदर ऑल योर आइडियाज एंड यू हैव टू रेप्लिकेट देम. सो सर दैट आई लर्न फ्रॉम यू एंड आई नीडेड दैट थिंग एट दैट टाइम. सो अगर मेरे को नहीं चाहिए होता, इफ आई हैड बीन फ्रॉम अनदर बैकग्राउंड, सो सर शायद मैं उस चीज के लिए भी ऑप्ट नहीं करता. बट दैट पर्पस वाज क्लियर कि मेरे को इस चीज का गैप है, एंड आई वाज क्लियर कि मेरे को ये चीज चाहिए कहीं से. सो सर दिस वाज माय माइंडसेट फॉर ईच एंड एवरी स्टेज. कि प्रीलिम्स में सर जैसे कि पढ़ने में मेरे को कभी कोई इशू नहीं हुआ, तो आई ऑप्टेड फॉर सेल्फ स्टडी. आई नेवर वेंट फॉर अ फाउंडेशन कोर्स. बट अगर इफ समवन इज नॉट इवन एबल टू रीड एनसीईआरटीज, ही शुड बी द वन कि जिसको मतलब वो, इट्स नॉट लाइक कि नहीं हो पा रहा है, इट्स लाइक कि यू आर नॉट डिसिप्लिन, इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट. सो वो मेरे साथ नहीं था, तो आई डिडंट ऑप्ट फॉर दैट. तो कोचिंग का पर्पस क्लियर होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि दे विल हेल्प यू टू क्लियर दिस एग्जाम, दे विल हेल्प यू टू स्टडी, एंड दैट वाज द होल पर्पस शुरुआत से. एंड सर तो लकीली आई गॉट यू एंड यू हेल्प मी टू स्टडी, एंड दैट वाज द पर्पस कि एक्सेल हो गया पूरे सारी चीजें. एंड सर वन थिंग आई वुड ऑल्सो से कि ये एग्जाम तो थोड़ा लंबी प्रोसेस है, एंड टाइम टू टाइम यू विल रियलाइज योर गैप्स. तो वो गैप फिलिंग के लिए यू विल हैव टू हेल्प, गेट सम हेल्प फ्रॉम समवन, एंड समवन हु कैन हेल्प एक्चुअली हेल्प. गैप डायग्नोज करने एक देयर इज अ स्टेप बिफोर दैट टू बी एबल टू एग्जैक्टली एक्यूरेटली डायग्नोज ये गैप है. सो यू न्यू सोशल साइंस बैकग्राउंड नहीं है, आंसर राइटिंग में वो जो सोशल साइंस की वोकैबुलरी और फील नहीं आ रही है, मुझे कुछ एक्सपोजर चाहिए ताकि मैं. सो व्हाट यू सेड अबाउट सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम वर्सेस राइटिंग आंसर्स, एक में हम कन्वर्जेंट थिंकिंग करते हैं, हम सॉल्व करते हैं उसको. यस सर. क्रिएटिविटी तो होती नहीं है मैथ में. यस सर. यस सर. ना, एक में है कि हमको सब कुछ एक्सप्लोर करना है, जो भी नेटवर्क में है ये डिसाइड करना है कि लिखना क्या है वहाँ, यस सर. रेलिवेंट क्या है, और बाकी चीजें एलिमिनेट करनी है. तो यू आर एबल टू आइडेंटिफाई. ये आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, ये डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सर दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई फेस्ड आल्सो, बिकॉज सर यूपीएससी की एग्जाम का एक पैटर्न है, दे डोंट रिलीज योर मार्कशीट्स. तो आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या गलत किया है. सो सेल्फ डायग्नोसिस इज द एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इस एग्जाम के लिए, एटलीस्ट यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे मुश्किल चीज भी है. सो वन थिंग दैट आई कैन से, एक होता है कि
जो बिफोर एग्जाम और आफ्टर एग्जाम डायग्नोसिस होता है, एक तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, बट यहाँ पे सर एक इशू ये आता है कि कोचिंग सेंटर्स में ये माहौल है कि जो इवेल्युएटर्स हैं दे आर इवन लेस एक्सपीरियंस देन यू. Yes. सो समटाइम्स आई फेल्ट दैट, मतलब मेरे को बहुत रियलाइज हुआ कई स्टेजेस पे. सो सर, सो दैट वाज द थिंग 2021 में. सो आई वेंट फॉर दिस एसए इवैल्यूएशन बिकॉज आई वाज फीलिंग कि मेरा कुछ लैग है इसमें, एंड दे गेव मी वेरी पुअर मार्क्स. 35 मार्क्स के आसपास उन्होंने मेरे को एक एसए में दिए, एंड इट वॉज माई ईगो. आई विल से कि लकीली आई हैड दिस ईगो कि आई नो कि यार इतना बुरा तो नहीं लिखा है. सो हाँ, सो बट समहाउ अगर मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता खुद की राइटिंग पे, और सो सर मेरी एक फ्रेंड थी, सो दैट वाज, शी वाज नॉट फ्रॉम यूपीएससी बैकग्राउंड, सो शी यूज्ड टू राइट दीज इंटरनेशनल एसेज. सो आई शोड इट टू हर, एंड उसके मतलब उसने जब मेरे को थोड़ा सा उस चीज के ऊपर बोला कि तूने अच्छा लिखा है, सो दैट वाज काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस बूस्टर. बट दिस इज द थिंग वेयर पीपल फॉल प्रे. लाइक अगर किसी ने उनको डिमोटिवेट कर दिया, द पर्सन मे बी लेस एक्सपीरियंस देन देम. मैं तो देखता हूँ या तो डिमोटिवेट या ओवर कॉन्फिडेंट. यस सर. सेकंड थिंग, एक्चुअली में यूपीएससी मार्क्स नहीं देते हैं, एंड दे रिक्वायर अ सर्टेन लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन इन द कंटेंट एज वेल एज द राइटिंग स्टाइल. ये सिंपल फैक्ट है. मोस्ट पीपल हैव नोवेयर नियर दैट लेवल. यस सर. और उस लेवल पे आने के लिए टाइम लगता है, और यू आर राइट अबाउट दैट होल एस्पेक्ट. बट देन देयर इज अनदर साइड, यू नो, एक चैलेंज का एक अलग डायमेंशन है, वो ये टाइम मैनेजमेंट का इशू है. यस सर. ये सब चलो डायग्नोस हो भी गया है, तो इन सब चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट करना, स्किल्स इंक्रीज करना. बहुत लोग हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स, एंड यू आर ऑल्सो वर्किंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. यस सर. वर्किंग प्रोफेशनल होते होते आई वाज आल्सो वर्किंग प्रोफेशनल, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, ऑलवेज हैव बीन. उसके साथ में मुझे तो पता ही है कि मैं कैसे करता हूँ. हाउ डिड यू डू इट? Sir, when I decided to appear for this exam along with the job, so the prelims in 2021 I appeared with the job. Sir, मेरे को दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे. मेरे को ऐसा लगा था उस टाइम पे, एक कोई अच्छा गैजेट और एक अच्छा मेंटोर जो कि मेरे को गाइड कर सके कि एग्जैक्ट क्या फिल्टर करना है. और गैजेट सर, क्योंकि माय जॉब वाज ट्रैवलिंग, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल, बट मेरी जॉब का नेचर ऐसा था कि इट वाज अ ट्रैवलिंग जॉब. सो आई वाज ट्रैवलिंग टू जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कभी कश्मीर. सो इट वाज दैट काइंड ऑफ अ जॉब. तो मेरे को, मैं अपना आईपैड, एक गैजेट, एंड सर मेंटर वाज यू. सो दो चीजों को कैरी करके सर आई थॉट कि ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन था. एंड सर थर्ड थिंग वाज, आई नेवर लाइक इंक्रीज माई वर्क. मतलब वर्किंग प्रोफेशनल के साथ एटलीस्ट ये चीज सबसे ज्यादा है, उनको फिल्टर लगाना बहुत जरूरी है. इट्स समथिंग लाइक दैट कि दे विल हैव टू हिट द बुल्स आई, क्योंकि बाकी लोग अफोर्ड कर सकते हैं. सो सपोज समवन इज इन्वेस्टिंग 20 आवर्स अ डे, सो इवन इफ दे आर वेस्टिंग 10 आवर्स ऑन सम लाइक नॉन वैल्यूएबल रिसोर्सेज, उनका चल जाएगा. बट अ वर्किंग प्रोफेशनल हैज लाइक at most 8 hours a day or 9 hours a day, and that too if they are very disciplined or consistent. Yes. And their nature of job is also flexible. Selective बहुत ज्यादा होना पड़ेगा. Yes sir. तो उनको बहुत selective होना पड़ेगा, उनको बुलसा हिट करनी ही पड़ेगी. So sir, what I used to do, एक तो सर PYQs were the guide कि UPSC can only tell about UPSC. No coaching can tell exactly about UPSC. So sir, that was your advice to delve in those syllabus and to PYQs की इनसे ही समझ आएगा कि एग्जैक्टली क्या करना है. सर उसके बाद फिर खुद को लिमिट करना, हाइप से बचना, क्योंकि देयर इज अ हाइप अबाउट करंट अफेयर्स एंड ऑल दीज थिंग्स. फोमो. सो इस फोमो से बचना. ये सर, फोमो इज समथिंग कि एटलीस्ट ओल्ड राजेंद्र नगर में जो बच्चों को रून कर रहा है, सो दे गो टू दिस शॉप, दे फाइंड सम न्यू मटेरियल, एंड उसको लेके आप घर आ गए. फिर आपने अगर उसमें 6 घंटे इन्वेस्ट कर दिए, तो आई वुड से दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. वर्किंग प्रोफेशनल तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते. कंप्लीटली अग्रीड. वहां पे जाके और एक्सपीरियंस मेरा भी यही था. For the first 6 months I was basically stuck in FOMO. For the first 6 months मुझे यही नहीं समझ में आया था स्टार्टिंग में क्या करना है क्या नहीं करना है. और it became very clear to me very quickly कि ये अगर मैं करना स्टार्ट कर दूंगा, I will not be able to do all of it ever or any of it at all. फाइनली जब कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्लासेस खत्म हुए और मैं घर आके बैठा अकेले एक कमरे में, मैं उस कमरे से बाहर नहीं गया बहुत दिनों तक, तब जाके मुझे समझ में आया कि हो क्या रहा है. एंड आई एक्चुअली गॉट द जिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स. And you know, that is also something which feeds into this whole aspect of how to filter, how to be selective. यहाँ पर mentor का काम है. I don't know what impact I am able to have, but I did not have this mentor. Sir, for me you were the mentor and I was able to do it easily because मेरे को सर अगर मैं खुद से बैठता तो आई एम नॉट श्योर कि मैं कर पाता कि नहीं कर पाता. एंड अगेन सर, जो चीज मैंने राइटिंग स्किल्स की बोली, सो दिस वाज आल्सो समथिंग कि आई न्यू दैट यार ये सारे सब्जेक्ट मेरे लिए नए हैं. आई न्यू दैट ये एग्जाम मेरे लिए नया है. मतलब मैंने टेक्निकल एग्जाम्स पहले दिए हैं, बट
मतलब ये तो एग्जाम कुछ अलग है थोड़ा सा, और इसमें क्वेश्चंस और कंटेंट का मिसमैच बहुत है, Right. लाइक कि व्हाट वी आर रीडिंग एंड व्हाट वी आर गेटिंग इन द एग्जाम पेपर इज वेरी डिफरेंट. सो सर उस टाइम पे फिल्टर करना कि बेसिक सोर्सेज कौन से रखने हैं, एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें सर. सो मतलब मैंने तो पूरा मेंटर पे रिलाई किया. तो वो फिर एंड ट्रस्ट योर मेंटर इज समथिंग दैट आई वुड से, क्योंकि नो वन कैन गारंटी इन दिस एग्जाम कि क्या करने से कुछ होगा, बट आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि क्या नहीं करना है, एंड ये मेंटर कर सकता है. इससे मुझे लगता है मतलब बिल्कुल ठीक, यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन दिस. आई थिंक समथिंग एल्स व्हिच अ मेंटर डज, आई डोंट नो इफ आई डू दिस और नॉट, बट आई वांट टू. मुझे लगता है एक प्री डिटर्मिन्ड डेफिनेशन है एक अच्छे मेंटर की, कि दे विल बी एबल टू टेक योर इमेजिनेशन एंड पोटेंशियल आउटसाइड दीज एग्जाम्स. यस मतलब एक वो हमारी बहुत डिस्कशन हुई इस चीज पे. यस सर. हम लोग, मैंने बाकी स्टूडेंट से भी ये काफी डिस्कस करी, यूपीएससी में लाइफ खत्म नहीं होती, श्योर सर. यूपीएससी के बियॉन्ड जाती है. और जो यहाँ पर हो रहा है, इट शुड बी यूज्ड एज सम सॉर्ट ऑफ अ स्लिंग शॉट. आपको लाइफ में किसी अच्छी जगह पे लेकर जाए. एक ऐसा मौका मिल रहा है जब आप इंटेलेक्चुअली एक्सप्लोर कर रहे हो बहुत चीजें. यस ठीक है, एक एग्जाम नहीं हुआ तो दूसरा, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा. अब आपके केस में बहुत सारे, श्योर. बट अगर मान लो नहीं भी होते, यस सर. you would have used that slingshot to land somewhere else. And so that belief in yourself is another thing which a mentor imparts. Or my whole issue with जो UPSC exam and such exams is that confidence ही खत्म कर देते हैं लोगों का. The people who are very strong only survive with that confidence. नहीं तो एक दो बारी फेलियर के बाद हिम्मत ही टूट जाती. यस सर. ये बहुत डैमेजिंग एस्पेक्ट है जिसको आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट. ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फेलियर, CSAT बिग प्रॉब्लम, बहुत इरेटिक. कभी 5-6 साल पहले लेवल एकदम ज़्यादा था, फिर एकदम से कम हो गया, अब एकदम से फिर से बढ़ गया है. यू टॉट CSAT, यस. you have taught CSAT and you got a perfect score. जितने भी स्टूडेंट्स थे सुपर बैच में, I don't think any one of them has flunked it. सर नो कंप्लेंट्स येट. No complaints. मतलब you got a 100% success rate. वो तो खैर पता चल ही रहा था because the students were very appreciative of your style of teaching, and of course you know math very well. Yes. You intuitively understand. What can you tell me or the audience in a nutshell about CSAT, how to approach it, how to make sure not to fail? Yes, sir. Sir, first thing I would like to, so I have analyzed this part very well. Like apart from the whole process of exam, CSAT because being a teacher, so इसको मैंने बहुत अच्छे से analyze किया था. सर मेरे को दो ही reason समझ आए थे CSAT में fail होने के. One was the overconfidence and one was the underconfidence. So the people from IIT और जो maths background के रहते हैं, so they are overconfident, and वो लोग इतने overconfident होते हैं कि वो strategize नहीं करते. And CSAT is like a treasure hunt. So there are some tough questions, there are some easy questions, and you have to pick a blend of questions from reading comprehension, maths, reasoning, and all those things. अगर आप बहुत overconfident हो maths में, this year maths was too tough, even for the people from IIT, तो वो चीज आपको डिग्रेड कर देगी. सर अंडर कॉन्फिडेंट लोगों के साथ बस एक दिक्कत लगी मेरे को, जो हमारे बैच में हम लोगों ने क्योर करी है. मैंने सर आई हैव नॉट टॉट मैथ्स इन 2 months. जो अंडर कॉन्फिडेंट लोग थे, आई फील्ड इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस इन देम, एंड हाउ आई डिड दैट आई कैन टेल अबाउट इट. सर फर्स्ट थिंग, दे डोंट अप्रोच मैथ्स क्योंकि उनको लगता है उनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है. बट वन थिंग दे हैव टू कीप इन माइंड इज समथिंग कि numbers are something they will have to deal whole their life. So you can understand from the job की IRS being an IRS, IAS, कहीं ना कहीं तो नंबर्स और वो बेसिक एप्टीट्यूड तो चाहिए ही रहेगा. सो सर वो चैलेंज तो लेना पड़ेगा. फर्स्ट थिंग इज दैट बीइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू टेक दैट चैलेंज कि यार 10th तक की मैथ्स है, पढ़ लेते हैं. पढ़ना पड़ेगा. सेकेंड सर थिंग विल बी कि स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि यार ये पेपर क्वालिफाइंग है, एंड प्रीलिम्स का जो फर्स्ट पेपर है उसको शायद लिमिटेड 14-15,000 लोग ही क्लियर करेंगे, बट इस पेपर में कोई भी फेल नहीं होगा तो भी यूपीएससी को भी कोई इशू नहीं है. लाइक दे आर नॉट ऑल्सो लाइक टारगेटिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ दैट. सर फिर थर्ड थिंग इज दैट कि एक अगर आपके पास एक टीचर है या फिर जो भी है जो आपको बता सके, एंड सर अगेन सेम थिंग. सो व्हाट आई डिड, आई फाउंड दिस पैटर्न कि यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स लेता है एंड मैथ्स रीजनिंग उसमें कॉमन है. इट्स लाइक CDS, CAPF, EPFO, सारी चीजें उसमें सब में मैथ्स रीजनिंग कॉमन है. एंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, लाइक this year the paper was some arbitrary in some questions, but still like 60% of the paper from this year also and 100% of the past year papers, the level of difficulty is also maintained. Because क्योंकि सर CDS में तो मैथ्स के मार्क्स जुड़ते हैं, यहाँ पे तो फिर भी क्वालिफाइंग है. सो what I did, I picked these questions from all over the place. So सर उससे दो फायदे हो गए. एक तो प्रायोरिटीज. So I knew from the beginning कि permutation combinations and number system are the most important topics. So सर शायद 1 महीने तक हमने यही पढ़ा था क्लास में. I don't know कि बाकी कोचिंग में कितना टाइम डिवोट होता है या फिर
कोई बंदा पर्सनली कितना टाइम डिवोट करता है, बट आई नो फ्रॉम माई सेल्फ कि शायद से मैंने 5-6 क्लासेस या 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक तो नंबर सिस्टम और इतने मतलब, और लास्ट की जो क्लासेस थी बिल्कुल तो परम्यूटेशन के अराउंड, क्योंकि परम्यूटेशन वाज अ टफ टॉपिक। आई सेलेक्टिवली टोल्ड कि ये जो इजी क्वेश्चन है इनको कैसे करना है, क्योंकि आई नो कि ये लोग को डरा सकता है। एंड दीज वर द 2 टॉपिक्स दिस ईयर, लकीली इट फॉर्म्ड, लाइक लकीली फॉर आवर स्टूडेंट्स this year the paper was like 50% or 60% of the paper was from these 2 topics. Right. And how did I predicted that? ऐसा तो नहीं था पूरा प्रिडिक्ट कर लिया था मेरे को, the paper was arbitrary for me too. I was appearing being an aspirant also, so the paper was surprising, but because यूपीएससी हैड, सो जब मैंने वो क्वेश्चन बैंक कंपाइल किया सारे एग्जाम्स का, तो सर नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बैंक ही 80 पेजेस का था सारे एग्जाम्स मिला के। सो यूपीएससी हैज अ हैबिट ऑफ आस्किंग फ्रॉम दैट टॉपिक, frequency is high, same with the permutation combination probability. Right. So this is how we predict things, and being a teacher I figured it out, being a teacher I delivered it to my students, and this is how I instilled, like if I can tell you कि एक अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन को बोला जाता है यूपीएससी को, इफ इट कैन बी अ लिटिल बिट प्रिडिक्टेबल विद द हेल्प ऑफ अ मेंटर और अ टीचर, देन यू आर कॉन्फिडेंट कि एटलीस्ट इतना कर लेंगे। तो जिन्होंने वो टॉपिक किए प्लस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किया, सर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हमने पूरा स्किल डेवलपमेंट, वो रीड थ्योरी एंड ऑल दोज रिसोर्सेज दैट वी शेयर्ड, सो एवरीवन वाज कॉन्फिडेंट इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। हमने वो नहीं करा कि यूट्यूब पे जो चलता है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की ट्रिक एंड ऑल, क्योंकि मतलब इट्स समथिंग लाइक दैट कि वो हर केस में काम करे ना करे, बट स्किल इज समथिंग दैट विल हेल्प यू। एंड सर लास्टली सीसैट वाज टोटली अ गेम ऑफ स्किल, एंड 2 से 3 महीने लगेंगे आपको वो लेवल के एप्टीट्यूड स्किल्स डेवलप करने में, और उसको कर लो। लाइक if UPSC is taking 2 exams, then why are you only preparing for 1? And more importantly, like you rightly said, math is overlapping with so many exams. अगर एक बार ही अच्छे से हो गया, yes, तो CSAT तो हो ही जाएगा, बहुत सारे एग्जाम निकलने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। सर एटलीस्ट इन द लास्ट जो मतलब मेन बैकअप मेरे को लगता है कि इफ यू वांट टू लैंड इन प्राइवेट सेक्टर एंड इफ यू आर नॉट लाइक हैविंग अ गुड ग्रेजुएशन डिग्री, सर एमबीए इज द बेस्ट ऑप्शन। इंडिया में तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हुई हैं, तो कैट का एग्जाम सर, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि if you are talking about balance in the backup plan, तो maths and reasoning are the way to that balance. Surely. कि आपको दूसरे एग्जाम देने हैं, एसएससी, आरबीआई ग्रेड बी, दूसरे यूपीएससी के एग्जाम, सीएपीएफ, सीडीएस एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड सर जो आपने बोला कि इतने सारे प्रीलिम्स क्लियर करे, क्योंकि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं इसका एलिमेंट था, एंड बिकॉज आई न्यू दिस थिंग कि रीजनिंग है, मैथ्स है, तो आई वाज एबल टू डू देम कंफर्टेबली। सो ये भी एक फैक्टर था सर। डेफिनेटली। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम यू. Being an aspirant and a student, you are a successful aspirant and a student, that we know from the track record. Yes. But you are also a teacher, and now you have enough experience. You have actually mentored people. Yes, sir. Yes, I was a mentor in that group, but you were doing a lot of mentoring there yourself. Yes, sir. What have you understood? What have you extracted? As a teacher now, I'm asking you. So first thing that I've extracted is this customization that people need. कि हर individual की एक ही वो नहीं है। यूपीएससी इज एन एग्जाम जिसमें एवरीवन इज लैकिंग इन डिफरेंट स्टेजेस, हर कोई अलग अलग स्टेज पे है, कंटेंट वाइज नहीं तो स्किल वाइज, हर कोई के अलग अलग प्रॉब्लम्स है, मे बी पर्सनल और फाइनेंशियल और प्रोफेशनल। सम आर वर्किंग एस्पिरेंट्स, सम हैव डिफरेंट स्टडी हैबिट्स, किसी को लिखना, किसी की कोई स्किल, राइटिंग स्किल अच्छी है, किसी की रीडिंग स्किल नहीं है, समवन आर नॉट एबल टू रीड द न्यूज़पेपर, एवरीवन हैज डिफरेंट प्रॉब्लम्स। एंड सेम विद सीसैट सर, किसी का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं था, किसी का मैथ्स नहीं था। एंड सर प्रीलिम सुपर बैच वाज वन थिंग कि मैं पढ़ा सीसैट रहा था, बट होल आई वाज मेंटरिंग अबाउट होल प्रीलिम्स। एंड सर एक जो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने की बात है ना, अगर आपके मेंटोर हैं जिन्होंने वो पेपर क्लियर कर रखा है, यू कैन मेक देम फील कि यार ये इट इज डूएबल। दैट इज समथिंग कि इफ यू यूपीएससी को सर शुरू से लोग बोलते हैं कि इम्पॉसिबल है, एंड दे एंड अप फेसिंग इट कि ये तो इम्पॉसिबल ही था मेरे लिए। हाँ, और चाहे अगर है भी तो वो मुझे लगता है कि इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि लोगों का पोटेंशियल इन्फिनिट ही होता है। yes, और अगर उनको ये चीज़ सिर्फ बता भी दी जाए तो एज अ साइकोलॉजिस्ट दिस इज समथिंग आई मेक श्योर आई डू। चाहे उनका पेपर क्लियर हो या ना हो, वो अच्छा फील कर रहे हो ना कर रहे हो, दे आर फीलिंग डिप्लीटेड और ओवर कॉन्फिडेंट, उनको ये बता देना चाहिए उनका पोटेंशियल एक्चुअली में इन्फिनिट है, और ये डेमोस्ट्रेट करके दिखा देना चाहिए उसको। यस सर। अगर ये उसको क्लियर हो गया तो फिर एग्जाम का डर तो खत्म। एक बहुत छोटा सा एक उसका पॉजिटिव साइड इफेक्ट हो जाता है। फिर और बहुत चीज़ें मैंने तो देखा, ब्रेक थ्रू होते देखे हैं मैंने। जैसे ही कॉन्फिडेंस लोगों को आता है खुद की एबिलिटीज में, इट्स नॉट जस्ट देयर एबिलिटी ऑफ मैथ और द एबिलिटी टू बी एबल टू क्लियर प्रीलिम्स, योर एबिलिटी, द फैक्ट दैट यू आर गुड इनफ, ये कोई बोलता नहीं है, ये फैक्ट है। एवरीवन आई सी इन द यूपीएससी एंड अदर एग्जाम्स वॉकिंग अराउंड विद दिस कॉम्प्लेक्स कि आई एम नॉट गुड इनफ। यस सर। सर दिस इज द वन थिंग दैट वी डिड। देयर वर सम स्टूडेंट्स जो
they were very sincere. They were, even I was accountable कि इनका क्यों नहीं हुआ. But I made sure कि जब 10 day after prelims, I called each and every one of them and I told them कि यार this exam cannot judge you. You मतलब that exam was just judging your कि कितना तुम लोगों ने तुक्के फेर दिए या कितना तुम लोग लकी हो and all those things, वो जज कर लिया उस एग्जाम ने, या फिर तुमने चलो ठीक है अगर होप लूज कर लिया 2 घंटे के लिए, दैट्स इनफ. उसके अलावा आई नो लाइक वो यूपीएससी को नहीं पता कि तुम कैसे हो, बट योर मेंटर नोज, योर मेंटर नोज यू फ्रॉम 3-4 months, और उनको पता है कि तुम्हारा लेवल क्या है. एंड एट दैट टाइम सर आई फेल्ट कि ये चीज बहुत जरूरी है. ये चीज हमने बहुत कोशिश करके इंस्टिल करी थी उन लोगों में, क्योंकि इनहेरेंटली ये तो मेरा एक बायस ही है, ये बायस तो नहीं है, दिस इज माई ट्रू बिलीफ अबाउट ह्यूमन बीइंग्स इन जनरल. तो ये मैं कम्युनिकेट कर देता हूँ, आई मेक श्योर दैट दिस इज गेटिंग थ्रू. तो मैंने ये देखा कि जैसे ये रिजल्ट आया, एवरीवेयर यू नो देयर वाज ह्यू एंड क्राई, देयर वाज अ लॉट ऑफ पेन. होता ही है रिजल्ट में, बट आवर स्टूडेंट्स देयर, द वंस हु आर कनेक्टेड विद मी, वो इतना नहीं हिले उससे. पेपर के बाद भी नहीं हिले, परेशान जरूर हुए, बट इमीडिएटली दे सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड. सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड से याद आया कम्युनिटी. यस, कम्युनिटी हमारे को कितना सपोर्ट दे गई हमको खुद को, आर वर्क एज टीचर्स एंड मेंटर्स एंड स्टूडेंट्स देमसेल्व्स. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग द लेवल ऑफ कम्युनिटी दैट वाज डेवलप्ड. तो व्हिच ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन, कम्युनिटी का क्या रोल है? सर कम्युनिटी का रोल, सर बिफोर दैट आई वांट टू शेयर दिस थिंग कि लास्ट नाइट आई इंटरेक्टेड विद आवर स्टूडेंट्स and it was the best expression of my happiness. Like I was not very much comfortable in front of family, not much comfortable in front of friends also. And एक चीज ये भी थी सर कि रिएक्ट करना नहीं आता कि इतनी एकदम से इतनी बड़ी सक्सेस एकदम से तुम्हारी लाइफ में आ गई तो क्या रिएक्शन है. बट व्हेन आई इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट्स, लाइक आई वाज अ मेंटर टू देम, and so they organized this Google Meet, and when I entered the meet, so they didn't allow me to enter at first. उन लोगों ने थोड़ा टाइम बाद मेरे को एंटर कराया, and जब मैंने एंटर किया तो they congratulated me, and बहुत सर it was an experience. And I was not just happy कि ये लोग मेरे लिए इतना खुश हैं, I was just happy कि बैच को कंक्लूड हुए बहुत टाइम हो गया, ये लोग इतने साथ में अभी तक भी, एंड दे इंटरेक्ट ऑफिशियली अनऑफिशियली, दे हेल्प ईच अदर. एंड सर जो लोग बैकअप, जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स थे हमारे ग्रुप में, दे आर हेल्पिंग पीपल टू गेट जॉब्स. सर दिस इज समथिंग दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस इन लाइफ. इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट एग्जाम. एंड सर जो कुछ लोग थे जो MBA थे, दे आर हेल्पिंग पीपल अबाउट कैट एग्जाम, लाइक मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग आफ्टर दैट. लाइक हमने, एंड सर आई टोल्ड देम वन थिंग एंड दे आर फॉलोइंग इट रिलीजियसली. I told them this thing multiple times कि always be worried about future but never be bothered about past. So sir जब ये एग्जाम फ्यूचर में था, जब हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, we were very much worried about it, we were very much involved in it. We were मतलब मैं सर मतलब I remember the last doubt session that I took for CSAT 2 days before exam. It started at 8 PM and it ended at 4 AM. Like it was the last doubt session कि जितने भी डाउट्स हैं आज तुम मेरे को बता दो क्योंकि 2 दिन बाद एग्जाम है. If you are getting a question wrong because I was not able to clear your doubt, so that is my failure, I told them. And it was the longest doubt session that we took and it was just 2 days before exam. And sir वो लोग का जो फिर एग्जाम में जो हेल्प हुई, वो सारी चीजें हुई, तो that is the community that we have created. Agreed. It is like a family sir now. It is like a family. और कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है कि मुझे लगता है अब आगे बहुत सालों तक चलती रहेगी वो. Yes sir. तो ये जो एक अफेक्ट क्रिएट हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है ना, एक तो मेंटरशिप वर्ड ओवर यूज अब्यूज हो चुका है अब. Yes sir. जिसको देखो, एवरी टॉम डिक एंड हैरी कॉल्स देमसेल्व्स द मेंटर. Yes sir. They have not the faintest idea about what mentorship includes, and there's always this sense of grabbing the attention of you as a mentor, but the mentor is not supposed to have the attention. They're supposed to divert the attention and bring the light inside that other person. Yes, that spark should go off. Yes sir. Yes. उसको self enable और self efficacious और self empower करना है. Yes sir. And the community can do that. तो आप बस उस spark को ignite करने की कोशिश करते रहते हो, और हमारे केस में तो चलो ये हो गया. So even I am the best example. So I got empowered. I was under a mentorship. I became a faculty before clearing this exam. And sir, being with you, even if I will not clear this exam, I was so much confident. So we would have worked on some entrepreneurial ideas or something like that. And the belief and faith that you showed in me, it's much bigger than this rank also, sir. So now I know that I'm going to serve the government. But before 3 months of this result also, I was confident that I will do something great in life. Yeah. So that was the kind of thing that happened to me. Though that was the empowerment that happened to me. Yeah. कि वो empowerment sir I faced it. So that is something I can say कि ये mentorship की definition है. Sir मतलब
राजेंद्र नगर में जो लोग पेपर चेक कर रहे हैं वो खुद को मेंटोर बोलते हैं एंड दे डोंट हैव द एक्सपीरियंस आल्सो कि एंड वो उनके कमेंट्स किसी के ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं दे डोंट नो आल्सो. और मैं ये बिल्कुल भी क्लेम नहीं करता कि बहुत अच्छा मुझे वो है. आई वॉज ट्रेन्ड फॉर इट बिकॉज ऑफ माई डिग्री इन साइकोलॉजी एंड माई इंटरेस्ट इन इट. तो ये पूरा का पूरा एक साइकोलॉजी का जो थेराप्यूटिक स्किल है वो सीखना पड़ता है इन डिग्री से. इट इज नॉट टॉट आउटसाइड yes. एंड इट इज ऑल्सो हाईली regulated because you are dealing with mental health. Yes, sir. So those ideas, when you apply, these are the ideas of therapy and psychotherapeutic techniques Yes, sir. which can be used in one-on-one sessions. Of course, अब clinical psychology में extreme cases में यूज हो रहे होते हैं. मैं देखता हूँ UPSC aspirants बिल्कुल उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं. Yes, sir. वही डिप्रेशन, वही एंजाइटी, वही स्ट्रेस मैनेजमेंट, वही अंडर Lack of कॉन्फिडेंस, sleep, insomnia, yes, insomnia. बिल्कुल एग्जैक्टली द मेंटल हेल्थ इज हॉरिबल Yes, एंड दिस इज ऑल दे नीड. एंड इफ यू ब्रिंग some relief to that, and Yes, like sir. you said, अब तुम मुझे I knew about you and I knew your capability because I have experience. I was not giving blind confidence. Yes, sir. I could see it. Now you can see it also. Yes, Now the world can see it also. But it was very plainly visible to me. Anybody I think who had any remotely the experience that I have had would also be able to see it. It was not as if it was invisible, you know. तो वो था ही. और आप इज्जत के लायक हो, इसीलिए आपको उन स्टूडेंट्स ने इतनी इज्जत दी, बिकॉज यू वर्क वेरी हार्ड एंड यू वर्क वेरी सिंसियरली. दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द थिंग्स विच ही मे नॉट स्पीक अबाउट बिकॉज ही इज probably too humble, may not even know about them, but I'll tell you about that. So one, he is very humble. Two, his temperament is very stable, and this is something I'm speaking as a psychologist and somebody who knows him. Three, he does not ever shy away from working hard. बहुत gracefully he accepts it. He does not hold negativity or malice in his head. And there's another very important thing. He has a mindset जो मैंने कुछ लोगों में देखा है. I admittedly do not have that mindset. That he keeps his mind sanitized from negativity. Negativity does not allow to enter ज़्यादा देर नहीं entertain करता ये. और उसको positive direction में ही deliberately, consciously nudge करता रहता है. That is something I don't know where he got it from, but ये सबसे बड़ा trait है. As a mentor and as a psychologist, this is what I want you to understand from him. This is what I want you to take from him. I don't know about his mathematical skills. मुझे नहीं लगता इतनी mathematical skill आपको जरूरत है. This list of successes that he has had, मुझे लगता है is because of his bias towards positivity. That is the best thing about him. That is the best thing that we all inherently have. आसपास के फीडबैक से शायद हम थोड़ा नेगेटिव ओरिएंटेशन की तरफ शायद चले जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को कुछ समझते नहीं हैं. Yes, sir. और वैसे भी द वर्ल्ड इज कीन ऑन मेकिंग अस फील स्मॉल. Yes, sir. तो उस चीज को ही हैज बीन एबल टू बीट इट साइकोलॉजिकली इंडिपेंडेंटली. दैट आई थिंक इज द बिगेस्ट मैसेज दैट ही हैज एज अ टेस्टिमेंट ऑफ हिम सिटिंग हियर 2 years. If he can be here, then so can you. There is no question about it. Thank you very much for this Thank you, sir. amazing conversation. I hope that, and I know that our engagement will go on for a long time. अभी तो एक अलग टाइप की conversation start होगी. Yes. When you enter the government. So we'll talk about that as well. Yes, sir. Congratulations Well, once again. You've made me very proud. You've Thank you, also sir. made proud a lot of other students who have come in contact with you. You have, I would say, confidently, I would say, a very good example you have set. You did it without disturbing your mental health. Yes, sir. That I think is a very big message to all the aspirant community out there. Be like him in the terms of his temperament, and life will be good. That is my guarantee to you. Thank you very much, and we'll see you next time.